Very good morning to all my lovely patans. So I am back with your computer class. In the last class we have started the new chapter, that is chapter 7, word editing and formatting. Now we'll do the next topics of this chapter, that is undo feature, how to delete the text, then spelling and grammar check, and how to correct the spelling by right clicking. So we are going to do page number 72 and 73. So everyone take out your books, get ready, and those who are having laptops or computer with them, get ready with your computer and your laptop and do the same side by side what I am going to teach you. Okay, so let's start now. So this is your desktop screen. So first of all we are going to open the Microsoft Word and will open our document which we have created in the last class, that is project mobile computer 2021. So click on the office button and you will find your file here. So recent documents आप अपनी file देख सकते हैं and click on it and it will open. So this is our document. Okay, so now next is deleting text in a document. So we can remove or delete the text which we do not need. Okay, जो text हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम delete कर सकते हैं. Like what you have to do, like I am selecting this. How to select the text that I have already told you. Okay, so हमने text select किया. Now what you need to do is press the delete key. Here is your delete key. Okay, so I am going to press this delete key and you will see this selected text will be deleted. You can see delete हो गया. So this way आप अपने document में कोई भी text जो है उसको delete कर सकते हैं. Okay, now next is undo feature. So undo feature is available on the quick access toolbar. So आपका quick access toolbar क्या होता है? Quick access toolbar where we can keep our most commonly used commands, most frequently used command. जो commands हम बार बार use करते हैं उन commands को हम quick access toolbar पे place कर देते हैं. और आपका quick access toolbar कहाँ होता है? I'll show you. It is here on the left side of your title bar. Title bar के left side पे आप देख सकते हैं this is your quick access toolbar. Okay, and this one is your undo feature. ये आपका undo command है and this one is the redo command. Now what is the use of undo command? Undo command is used to reverse the actions we take while working in a document. Basically ये feature, ये command हमारा तब यूज़फुल होता है जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है डॉक्यूमेंट में या बाय मिस्टेक कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और हमें वो वापस से चाहिए होता है. सो वहाँ पे हम undo फीचर यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो लाइक हमने अभी जो टेक्स्ट डिलीट किया था, सपोज़ वो हमसे बाय मिस्टेक हमने डिलीट कर दिया बट आई वांट इट बैक. So what we can do is we can use the undo feature. Click on this undo feature here. Undo command पे click करेंगे and the shortcut for undo command is Control plus Z. This is your control key, this is your Z key. So आप जैसे इन दोनों को साथ में प्रेस करेंगे जो भी हमारा लास्ट एक्शन था वो कैंसिल हो जाता है. देखो, तो जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस Z किया या आप क्विक एक्सेस टूल बार से अंडू कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिलीटेड टेक्स्ट जो है वो वापस आ जाएगा. ओके, सो अभी आप देखेंगे, देखो अभी तक क्या था, आपका जो अंडू कमांड था वो ब्लू कलर में शो हो रहा था. यू कैन सी हियर ये ब्लू कलर में था बट नाउ इट इज़ ऑफ ग्रे कलर.
अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, अब ये ग्रे कलर का हो गया है. वाई इज़ इट सो? बिकॉज हमने अभी अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया था और अभी हमने इसमें चेंजेस करने स्टार्ट किए थे, और जो लास्ट हमने चेंज किया था वो क्या किया था अभी ओपन करने के बाद, जस्ट हमने ये सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो डिलीट किया था. तो ये सिंगल चेंज ही हमने किया था, इससे पहले तो कोई चेंज नहीं किया था हमने. ओके, सो इसीलिए वो ग्रे हो गया, क्योंकि यही एक सिंगल लास्ट चेंज था जो हमने अभी तक किया था. अगर हमने ज़्यादा किए होते तो हम उनको भी अंडू कर सकते थे, यानी कि उनको भी, जो भी लास्ट एक्शन हम करते हैं उसको कैंसिल करने के लिए हम अंडू कमांड यूज़ करते हैं. या सपोज़ कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पे भी हम अंडू कमांड यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. सो जब भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं वर्ड में, and as I told you earlier also, you can see this, some words are there underlined with red color or green color. So these wavy colored lines identify the spelling and grammar mistakes, grammatical or your spelling mistakes. तो ये आपकी रेड वेवी लाइन और ग्रीन वेवी लाइन क्या करती हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को फाइंड आउट करती हैं. Okay, red wavy line shows the spelling mistakes and green wavy line shows the grammatical mistake. grammatical mistake भी आप मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको. देखो, लाइक यहाँ पे क्या है, सिमिलरली अ मोबाइल डिवाइस इज़ अ, तो इसकी जगह अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सिंगल एक मोबाइल डिवाइस की बात हो रही है तो इज़ था, अभी हमने यहाँ आर लगा दिया है, तो आप नोटिस करेंगे हेयर विल कम द ग्रीन वेवी लाइन. देखो, ये ग्रीन वेवी लाइन आ गई ना. सो दिस इज़ द ग्रामेटिकल एरर. तो जहाँ भी ग्रामेटिकल एरर होगा वहाँ पे ग्रीन वेवी लाइन आएगी, और जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहाँ पे रेड वेवी लाइन आएगी. ओके, सो द वर्ड कंपेयर्स एवरी वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द वर्ड्स इन इट्स डिक्शनरी. देखो, वर्ड में उसकी अपनी एक डिक्शनरी होती है जिसमें मोस्टली बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो जब भी कोई भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं वर्ड में, तो वर्ड क्या करता है, हर एक वर्ड को कंपेयर करता है अपनी डिक्शनरी से, जो वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में हैं उनसे कंपेयर करता है. इफ़ द टाइप्ड वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड इन द डिक्शनरी, इट इज़ कंसिडर्ड एज मिसस्पेल्ड वर्ड एंड इट इज़ अंडरलाइंड विद द रेड वेवी लाइन. तो अगर कोई भी वर्ड मैच नहीं करता है डिक्शनरी के वर्ड से, तो उसको वो एज अ मिसस्पेल्ड वर्ड लेता है और रेड वेवी लाइन शो कर देता है. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट द स्पेलिंग एरर्स और मिस्टेक? जस्ट क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमने बिगनिंग पे क्लिक कर दिया. ओके, now click on the review tab. You will see the number of tabs here. So this is your review tab. Okay, so we'll click on the review tab. Now here click on spelling and grammar button. This is your spelling and grammar button. और हम F7 की भी प्रेस कर सकते हैं, F7 फंक्शन की. सो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, सो देखो आपका ये बॉक्स अपीयर होगा, और इस बॉक्स में ये सबसे पहले स्टार्टिंग से, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग से, और जहाँ कहीं भी इसको सबसे पहले जो भी मिस्टेक मिलेगी ये उसको हाईलाइट करेगा. ओके, नाउ यू कैन सी द स्पेलिंग मिस्टेक हेयर. दिस इज़ द स्पेलिंग मिस्टेक. एंड नाउ यू कैन सी द सजेशंस हेयर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड. यहाँ पे आप सजेशंस देख सकते हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू करेक्ट इट, हमें इसको करेक्ट करना है तो इन सजेशन से हम करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करेंगे एंड विल क्लिक ऑन द चेंज ऑप्शन. सो वी नीड डिवाइस ओनली. फर्स्ट वर्ड हमें चाहिए डिवाइस, DEVICE.
ओके, सो नाउ विल क्लिक ऑन चेंज। देखो, तो फर्स्ट मिस्टेक वो थी, अब वो करेक्ट हो गई, तो नेक्स्ट मिस्टेक क्या आ गई, हमारी ग्रामेटिकल एरर आ गया है। ओके, सो अ मोबाइल डिवाइसेस आर, या तो मोबाइल डिवाइस इज हो या मोबाइल डिवाइसेस आर हो, ठीक है, या तो हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ाने पड़ेंगे या फिर हमें इज़ यूज़ करना होगा। सो हेयर ऑल्सो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो आपको चाहिए, एंड देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज। अब हमने वो भी चेंज कर दिया, अब उसके नेक्स्ट जो भी मिस्टेक होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सजेशन में एक ही ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है, तो विल क्लिक ऑन चेंज अगेन। सो नाउ उसके बाद कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक नहीं थी, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, देन क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ यू कैन सी, देखो अब कोई भी रेड वेवी लाइन या ग्रीन वेवी लाइन आपको यहाँ नहीं नज़र आ रही है, मीन्स नाउ देयर इज़ नो स्पेलिंग एरर और नो ग्रामेटिकल एरर। ओके, सो नाउ करेक्टिंग अ मिस्टेक बाय राइट क्लिकिंग, राइट क्लिक से हम कैसे कोई भी मिस्टेक करेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले हम अंडू करेंगे ताकि जो भी हमारी मिस्टेक थी वो वापस से आ जाएं, फिर उनको हम राइट क्लिक से करेक्ट करेंगे। सो विल क्लिक ऑन द अंडू कमांड, हियर इज़ योर अंडू कमांड। तो देखो वापस से हमारी मिस्टेक्स आ गई हैं, एरर आ गए हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसे रेड वेवी लाइन या ग्रीन वेवी लाइन नज़र आए जिस भी सेंटेंस पे या वर्ड पे, सो आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को उस पर लेके जाना है। नाउ राइट क्लिक ऑन इट, राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, एक स्मॉल मेन्यू अपीयर होगा जिसमें वो आपको सजेशंस शो करेगा जो अभी हमने लास्ट बॉक्सेस में देखे थे। अभी वो आपके यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस। सो जो भी करेक्ट ऑप्शन है, जो भी आपको रिक्वायर है, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारी जो है ग्रामेटिकल एरर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हमें इसे करना है तो डिवाइस वर्ड को करेक्ट करना है, सो अगेन विल क्लिक ऑन राइट, विल क्लिक राइट क्लिक, राइट माउस बटन प्रेस करेंगे एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ सजेशंस। अगर सपोज़ आपको इग्नोर करना है इसको, आप इसको रखना चाहते हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्लिक ऑन इग्नोर और वो इग्नोर हो जाएगा। या फिर आपको लगता है कि ये स्पेलिंग ठीक है, कई बार क्या होता है, लाइक अगर हम कलर टाइप करते हैं COLOUR कलर, तो वर्ड की डिक्शनरी में ये स्पेलिंग कलर की रॉन्ग है, तो अगर हमें डिक्शनरी में ऐड करना है तो आपको देखो ऐड टू डिक्शनरी, तो हम क्लिक टू ऐड टू डिक्शनरी करेंगे। सो देखो वो आपका जो रेड वेवी लाइन थी वो हट गई है, अब ये वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कलर टाइप करोगे COLOUR, तो इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं आएगा। ओके, इफ़ यू वांट टू करेक्ट दिस, again right click, choose the correct option and it will be corrected. Okay, so this way you can do the spelling and grammar check and you can correct them also. And we have learnt about how to delete the text and undo feature I have told you. So you have to read page number 72 and 73 also. As you have learnt in class 3 that we have backspace key and delete key to remove the text, to erase the text. So you can use both these keys as per your requirement.
So if you want to delete any word, suppose the cursor is here, दिस इज़ योर कर्सर. अगर आपको कर्सर के राइट साइड पे कर्सर और इंसर्शन पॉइंट के या कर्सर के राइट साइड से अगर वर्ड को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डिलीट यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस डिलीट की, जैसे ही हम कंट्रोल प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे कर्सर के राइट साइड पे जो भी वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा. सी देखो, कंप्यूटर डिलीट हो गया, यू डिलीट हो गया, कैन, कैरी, फ्रॉम, प्लेस, टू, प्लेस. सो इस तरह से भी हम डिलीट कर सकते हैं. यू नीड टू डू प्रेस द कंट्रोल की अलोंग विद द डिलीट की, दोनों को साथ में प्रेस करना है. सो यू कैन सी. सो इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड पे जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी सिंगल वर्ड होगा, तो वर्ड बाय वर्ड हम डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं. इन द सेम वे अगर आप बैकस्पेस की से करना चाहते हो तो बैकस्पेस की हमें पता है वो कर्सर के लेफ़्ट साइड से इरेज करती है. तो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की, उससे हम कर्सर के लेफ़्ट साइड पे जो टेक्स्ट है वर्ड बाय वर्ड इरेज कर सकते हैं. यू कैन सी. देखो अब लेफ़्ट साइड का टेक्स्ट इरेज हो रहा है. ओके, सो दिस वे यू कैन erase the text, remove the text by using control plus delete. To delete the word to the right of the insertion point, and control plus backspace to delete or remove the word which is on the left side of your insertion point. Okay, now अभी हमने इतना ही delete किया. Again we'll do undo so that we'll get all our text back. Okay, and now again we'll right click on it and we'll correct its spelling. So we have done the spelling and error check, and we'll click on this save button which is on the quick access toolbar to save these changes. तो ये चेंजेस हमने सेव कर दिए हैं. नाउ यू कैन सी नो स्पेलिंग एरर और नो ग्रामेटिकल एरर इज़ देयर. ओके, सो वी हैव सेव्ड इट. सो रीड पेज नंबर 72, 73 and do practice also. Okay, so till then take care and keep revising your chapters. Okay, so take care. Bye everyone. Thank you.